so many things in the today's session practically. So first, we are going to start regarding the technical analysis. Now, what is the technical analysis? Always remember that technical analysis is telling you about the price movement, means how the price fluctuates, and you can easily identify that where is the market trend with the help of the technical analysis. Now, the technical analysis involves the analyzing of the price charts and the patterns to predict the future movement. Now, what is this exactly? Now, I'm just going to the one of the screen over here. I hope that one screen is visible to all of you. Please confirm. Is my Yes, screen is ma'am. visible? Okay. So over here, you are able to see something called as a charts. Means some sort of the diagram like pattern, you are able to see it over here. Now, what is this basically? All of this is nothing but indicating you the price movement. For example, now I'm just going to mark this portion. Okay. So what is this basically and what it calls? It calls as the candle. करेक्ट हम लोग जैसे मोमबत्ती बोलते हैं ना वैसे ही दिस इज कॉल्ड एज द कैंडल नाउ what this candle is showing you, the candle is showing you four important things, and what are that? It is showing you the price movement, means where a particular stock open, what was the lowest point, what was the high, and what was the closing price. All that things one candle is showing you. Again, I'll repeat. Now, what we are going to understand? We are going to understand regarding the candlestick patterns. But before starting that, we are going to understand regarding the candle. Now, what is this candle? Candle is nothing but one of the diagram which shows you so many things to all of you, and it's quite easy to understand all the price movement. So basically what the candle is showing you, the price movement, मतलब एक दिन में किसी भी स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ है ये आपको ना वर्बली, इफ वी विल टॉक वर्बली, so that becomes extremely complicated. But candlestick mein it becomes very easy. Yes, we are preparing the pie chart, we are preparing the different type of the charts, or we are preparing the different diagrams to explain any difficult uh, concept. So candlestick is also making the price movement so much easier. Now, what is this candlestick? So for that, I'm going to draw something in front of you as of now to understand the concept of the candle. Candle is something like this, and each and every candle is a different one. But अभी हम लोग ना सिर्फ कैंडल का कंसेप्ट समझने वाले हैं कि कैंडल बेसिकली होता क्या है. ओके, आई होप दैट कि कैंडल क्या होता है, at least you have understood that it is showing you the price movement of the particular stock. Give me 2 minutes. Let me make this more better. Yeah. Okay. Now, to understand the technical analysis, always you have to remember some sort of the things. And it's very easy. You have to remember regarding the colors. As of now on the screen, whatever the diagram I have made, what kind of color you are able to see here? Please reply to me. Green. color. Green color. Green. Okay. So you are going to basically deal with the two colors only. One is the green and another one is a red. Red color is always about, if I'll compare this concept with the signal. Whenever there is a red signal, we stop it. But what is the significance of the red color into the stock market? Always remember that green indicates the up move, whereas the red indicates the down move. As of now, in front of you, I have just made
one diagram over here, and इस diagram को बोलते क्या है? It is called as the candle. Correct? So आपको सबसे पहले as a beginner you have to remember one thing. अगर कैंडल ग्रीन कलर का है तो ये आपको सिंपली सिंप्लीफाई क्या करता है कि चलो आज के दिन जो भी प्राइस मूव था, मतलब आज के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर गया है, ये आपको किससे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन कलर कैंडल. नाउ अज्यूम दैट इंस्टेड ऑफ द ग्रीन, suppose oh, I'm not able to change. Okay. Now, instead of the green, suppose now, as of now, यहाँ पे red candle होता था. I'll just make that with the help of right. Green specifies the up move, whereas if the color of your candle is red, it it shows you that there was the downfall in the price. फॉर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट हम लोग एक सिंपल चीज ले लेते. देखो, अगर आज स्टॉक ओपन हुआ था 100 रुपीज में एंड पूरे दिन में जब भी क्लोजिंग हुआ उस स्टॉक का प्राइस था 120 रुपीज. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टॉक जब भी स्टॉक मार्केट ओपन हुआ था आज 100 रुपीज में था एंड टिल द 3:30 the price has increased to the 120 rupees. So अभी मुझे सोच के बोलो, अगर इसका कैंडल स्टिक हम लोग बनाएंगे तो उसका कलर क्या होगा? रेड और ग्रीन? ग्रीन. 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 ग्रीन, बिकॉज 100 रुपये में प्राइस स्टार्ट हुआ था एंड 120 रुपीज में जाके क्लोज हो गया. अगर उल्टा सिचुएशन होता है, जैसे स्टॉक ओपन हुआ था 90 रुपीज में एंड बंद होते होते वो आ गया 85 रुपीज में, तो इसका कैंडल कौन से कलर का बनेगा? रेड. It will be red. So as of now, in front of you, there is one example over here. जहां पे मैं अभी मार्क करूंगी, आप लोग मुझे सिर्फ इसका सिग्निफिकेंस बताओगे कि आज के दिन में ये प्राइस ऊपर चला गया था या नीचे चला गया था. अब ओके, Upward. इट मीन्स दैट कि प्राइस जब भी ओपन हुआ था प्राइस नीचे था, पूरे दिन ये स्टॉक ऊपर 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 बढ़ते गया एंड क्लोजिंग तक इट हैज क्लोज एट द अपर लेवल. दैट्स व्हाई दिस कैंडल is green. I hope यहाँ तक concept समझ में आ गया. Those who are the beginners even are able to understand this. Yes, ma'am. Yes. Okay, so ये एक simple चीज है. Now just focus over here where I am moving the cursor. यहाँ पे देखो, आज के दिन में trend. What is basically this trend company is? सबको Zudio पता होगा? Zudio. यस. ओके, तो Zudio का जो भी स्टोर है, शेयर है, उसका नाम है ट्रेंड. ओके, तो Zudio में आपको पता है कि लोग कितना आजकल पागल है Zudio के पीछे एंड एवरीवन विजिट द Zudio फ्रीक्वेंटली. करेक्ट. सो यहाँ पे देखो डे का रेंज क्या था? 6000. नाउ आई एम जस्ट मूविंग कर्सर ओवर हियर. 6834.80 एंड बंद होते होते ये स्टॉक बंद हुआ था 7100 पे. ये गेन था पूरे दिन में 2.69% एंड रुपीज में इसका इंटरप्रिटेशन है 185.25. अभी इसके अगर हम लोग प्रीवियस कैंडल्स देखेंगे, प्रीवियस अगर आप लोग 3 कैंडल्स देख रहे हो, आपको दिख क्या रहा है? कौन सा कलर है? रेड. एंड Yes. उस दिन क्या हुआ था? उस दिन प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था टॉप पे एंड पूरे दिन ये गिरता गया. अगेन नेक्स्ट डे जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, यहाँ पे भी सेम वही चीज हुई थी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था फिर गिरते गया. प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया
फिर गिरते गया। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक दो ही कंसेप्ट देखे हैं। देखो, अगर मैं आपको वर्ड्स में बोलूंगी ना कि आज ट्रेंड का स्टॉक था 6834.80 में ओपन हुआ, क्लोज होते होते 7100 तक आज उसका हाई गया था एंड क्लोजिंग प्राइस उसका 7063 था। अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करने जाऊंगी सो दैट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट, बट here the diagrammatic representation of this prices is quite simple, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये चार्ट देख रही हूँ, सिर्फ सिर्फ इसी चीज को देख रही हूँ, मुझे पता चल रहा है कि अरे हाँ, आज के दिन में तो प्राइस नीचे से ऊपर चला गया था। ये एक सिंपल सी चीज मुझे पता चल गई। एक और एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं, अभी आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। इफ आई एम नॉट, बहुत सारे रखने पड़ेंगे, एनीवेज स्टिल आई विल मार्क दिस वन। इसका इंटरप्रिटेशन बताइए, आज के दिन क्या हुआ था यहाँ पे? इंक्रीजेस, इंक्रीज हुआ, मतलब स्टार्ट नीचे से हुआ एंड ये ऊपर चलता गया। क्लियर? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? देन आई विल शो द वन मोर स्टॉक जहाँ पे आज कुछ नेगेटिव होगा। आई डोंट रिमेम्बर कि आज के दिन में नेगेटिव वाला कौन सा था। हाँ चलो, यहाँ पे देखो, अदानी एंटरप्राइजेस। आई होप दैट एवरीवन इज अवेयर हु इज मिस्टर अदानी, एंड उनका जो स्टॉक है, जो मेन कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, आप लोग देख रहे हो कि 1 2 3 4 दिन से उसका प्राइस गिर रहा है। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि चालू होता है सुबह में, तब प्राइस ऊपर रहता है एंड पूरे दिन वो गिरते ही रहता है। क्लियर? सो दैट इज represented by the red color. So red color and green color समझ में आ गया? Any confusion to the beginners, those even who has joined the meeting late, because हम लोगों ने जब start किया था we were only 50. So please confirm to me अगर किसी ने late join किया है, and if you are not able to understand anything, please do let me know. So I'll repeat this concept because this is the base. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. I joined now only, ma'am. So I think 5 minutes or 10 minutes I missed, ma'am. So can you please, ma'am? Yes, no problem at all. Just because of that only I ask. So that will be the revision for the other people. See, now we are going to understand regarding the candlestick. But basically a candlestick hota kya hai? Just give me 2 minutes. Let me delete this. Basically a candle hota kya hai? The candle is nothing but it representing you the price movement. Matlab, let's assume okay, now let's assume कि आपके पास एक स्टॉक था 100 रुपीज में, आज ये ओपन हुआ था, पूरे दिन ये बढ़ के 110 में चला गया। You know, listening that in the words is quite difficult. So what will happen? The diagram will represent it in a very simple manner. अगर मैं यहाँ पे, ये actually rectangle नहीं बना है, so forgive me for that. But अगर यहाँ पे ग्रीन कलर का हम लोग कैंडल निकाल देंगे, it's better I'll use the tool only. Just give me 2 minutes. I'm so sorry. मेरा drawing इतना अच्छा नहीं है. So okay. So what we are going to do? We are going to represent that with the green color. Green color दिख गया. Simple interpretation. The prices has moved in the upward direction. But suppose if you are able to see a red color. So what is the interpretation of your red color? Red color shows you the bearishness. Now, please remember that in the stock market, you have to even understand two important concepts. What is bullish and what is bearish? Bullish means upward trend. What is bearish? Bearish means the downward price move is called as the bearish. And what this candle is showing you? Candle is showing you price movement. आज कहाँ पे start हुआ था, इसका high क्या था, इसका low क्या था, all that is described by your candle. But as a beginner आपको सिर्फ याद रखना है कि green color means
the bullishness, and the red color is a bearishness. I hope itna समझ में आ गया. Can I move to the next concept? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, each and everyone comfortable? Okay. Now, what I'm going to do, I'm just going to even explain you the same candle in detail. Okay, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो ग्रीन कलर था ना, इसके ऊपर एक लाइन रख दिया एंड इसके नीचे भी एक लाइन रख दिया. तो क्या इसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा कि ग्रीन था जो हम लोगों ने समझा था, यस ग्रीन मींस द अप मूव? नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सर्टेन थिंग्स ओवर हियर कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था. कि प्राइस देखो, जब मैंने पहले दिखाया था, I just shown you this type of candle. I'll make this as a green. Okay, मैंने ऐसे दिखाया था. But as of now, if you will pay attention to the first candle, it's slightly different. क्यों different है? क्योंकि इसके ऊपर भी एक छोटा सा डंडी जैसा लाइन है, इसके नीचे भी एक छोटा सा डंडी जैसा लाइन है. We call this as a wick. Again, I am repeating, whatever this line-like structure, whether at the upside or at the downside, we call this as the wick. Clear? And ये जो rectangle जैसा जो structure है, we call this as the body. Clear? So ये जो है, this green-like structure, this is called as the body and this is called as the wick. Again, I'm taking you to the chart. Okay? अभी देखो, we are going to focus on this green color candle. तो ये जो ग्रीन कलर का रेक्टेंगल है, जो थोड़ा सा ब्लूइश आपको दिख रहा होगा मीटिंग में, सो ये जो ब्लूइश टाइप का दिख रहा है आपको, एक्चुअली दैट कलर इज द ग्रीन. सो ये जो ग्रीन कलर का जो रेक्टेंगल है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? बॉडी ऑफ द कैंडल. एंड इसके ऊपर थोड़ा सा लाइन लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? विक. क्लियर? Yes, ma'am. ओके, आई होप बॉडी एंड विक ये दो कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे खासे समझ में आ गए. नाउ अभी ना इन दोनों डायग्राम्स को आप लोग देखो, एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द अनदर कंसेप्ट ओवर हियर कि ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता क्या है आप लोगों को. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए, सो ऑल द बिगिनर्स प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द डायग्राम नंबर 2 बिकॉज इसको समझना ना बहुत ज्यादा इजी है. देखो, ग्रीन कलर का इंटरप्रिटेशन, व्हाट आई टोल्ड यू कि प्राइसेस आज के दिन ऊपर गई थी, बराबर. तो ये जो बॉटम है ना, ये था इसका ओपन प्राइस, बराबर. एंड ये जो टॉप है, दैट इज इट्स क्लोज प्राइस. अगेन आई एम रिपीटिंग, we are explaining first the diagram number 2 because इसको समझना बहुत ज्यादा इजी है. क्यों? क्योंकि प्राइजेस नीचे से स्टार्ट हो गए. लेट्स अज्यूम दैट ये प्राइस था आपका 100 रुपीज एंड ये प्राइस था 102 रुपीज. करेक्ट? सो अगर आप लोग ये कैंडल देखते हो तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आज के दिन ये स्टॉक 100 रुपीज में ओपन हुआ था एंड क्लोज जो हुआ था इसका, ये हुआ था 102 में. आई होप ईच एंड एवरी वन इन दिस मीटिंग इज कंफर्टेबल विद दिस. चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट. समझ में आ गया? कैन आई गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट? वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है. Yes, ma'am. Clear? Now we are going to the diagram number 1. Now please pay attention. Okay? यहाँ पे भी सेम इंटरप्रिटेशन रहेगा, बट इसमें ना एक एडवांस लेवल आ जाएगा. देखो, मतलब मैं सेम चीज डायग्राम नंबर 2 का ही यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ.
मार्केट ओपन कितने बजे होता है, कितने लोगों को पता है? कैन एनीवन रिप्लाई टू मी कि मार्केट कितने नाइन बजे 30 ओपन? 9:30 देखो 9:15 ओके 9 o'clock को मार्केट ओपन होता है, बट जो शुरू के 15 मिनट्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द प्री ओपन मार्केट. The normal people like you and me, we are not able to trade in that first 15 minutes. So for the normal people like you and me, the market starts at 9:15. Now the question arises कि अरे मैम, अगर मुझे डेली स्टॉक मार्केट से कुछ तो अर्न करना है, सो शुड आई हैव टू मॉनिटर द मार्केट फ्रॉम 9:15 और 9 o'clock? So the answer is that you have to start at 8:45. क्लियर? मतलब भले ही मार्केट हम लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा 9:15, बट वी हैव टू बी रेडी विथ आवर ट्रेडिंग टर्मिनल, जो भी हम लोग डीमैट अकाउंट यूज कर रहे हैं, एंड चार्ट, एंड इवन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज निफ्टी कहाँ पे ओपन होने वाला है, व्हाट आर द फैक्टर्स, वेदर द ग्लोबल मार्केट्स आर इन द ग्रीन और इन द रेड. ओके, सो यहाँ पे मैंने सेम चीज यहाँ पे ये किए थे. सो 9:15 को जब भी मार्केट ओपन हुआ तब प्राइस था 100 रुपीज, एंड जब भी क्लोज हो गया 3:30 को नॉर्मल लोगों के लिए तब प्राइस था 102. बट ड्यूरिंग द डे दिस प्राइस हैज इवन गॉन अप टू द प्राइस 108. ओके, सो उसे हम लोग बोलेंगे हाई प्राइस ऑफ द डे. मतलब क्लोज हुआ 3:30 को, दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइस वाज 102, बट आज के दिन में एक बार तो वो प्राइस 108 तक जाके रिटर्न आया था, बराबर. सो इसीलिए यहाँ पे ये जो विक बोलते हैं हम लोग, जो लाइन लाइक स्ट्रक्चर है, सो व्हाट दैट विक इज रिप्रेजेंटिंग यू, विक इज रिप्रेजेंटिंग यू कि भाई ये ऊपर तो गया था बट ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया. अगेन द स्टॉक हैज गिवन द क्लोजिंग बिलो द हाईएस्ट प्राइस. अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 102 का प्राइस है, ये आपको क्या दिखाता है कि 3:30 को जो भी उसका क्लोजिंग प्राइस आया था वो कौन सा था, ये आपको दिखाएगा, बराबर. बट आज के दिन में ये स्टॉक एक बार तो 108 तक गया था वो, लेकिन वो 8 के ऊपर नहीं जा पाया एंड वहां से नीचे आता रह गया. सो ये जो नीचे वाला जर्नी है उसका, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? आपके टॉप वाले विक से, क्योंकि ये 108 तक गया था एंड अगेन इट केम बैक. क्लियर हो गया? जो अपर साइड का विक था उसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया? यस मैम. Yes, ma'am. एंड प्लीज किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, डू लेट मी नो. ओके, अभी देखो, देन ये तो ओपनिंग प्राइस था 9:15 वाला विक का जो 100 रुपीज है. अभी हम लोग नीचे वाले विक का इंटरप्रिटेशन समझेंगे. ये था लोएस्ट पॉइंट. भले ही स्टॉक आज 100 रुपीज में ओपन हुआ था, बट एक बार तो ये 94 रुपीज तक नीचे चला गया था. बट वो नीचे ही नहीं रह गया, वो नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया, करेक्ट. एंड कितना ऊपर गया था? 108 तक गया था. सो योर कैंडलस्टिक इज रिप्रेजेंटिंग यू 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, जो आई एम राइटिंग एज ऑफ नाउ. देन दिन का हाईएस्ट प्राइस कितना था एंड दिन का लोएस्ट प्राइस कितना था. दिन का या स्पेसिफिक टाइम पीरियड का उसका हाई प्राइस कितना था एंड लो प्राइस कितना था, ये कौन आपको दिखाएगा? ये कैंडलस्टिक विल शो यू. अभी ये विक क्यों बनता है? बिकॉज विक इज रिप्रेजेंटिंग यू कि प्राइस ऊपर गया था या नीचे गया था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया. सो विक, you can say that it represents the weakness. okay, so अगर common language में थोड़ा सा easy words में आप लोगों को और समझना है डिटेल में, तो आप लोग ऐसे भी relate कर सकते हो. the weak is representing you the weakness.
Clear? Please Both some side, ma'am. reply. Sorry, it was question or what? Because मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज. Okay, both समझ में side, आ. ma'am. ओपनिंग ये मतलब अच्छा, ओपनिंग देखो, ये जो लोएस्ट अप एंड पॉइंट लो होता है दोनों ना. साइड को वीकनेस इसकी है. हाँ. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो ओपन आपका 915. अगर आप लोग डायग्राम नंबर 1 देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके स्क्रीन के, 100 रुपीज में ओपन हुआ था. जो 915 का प्राइस होता है ना, दैट जी इज मैम. ओपनिंग प्राइस. देन उसके बाद वो पूरा दिन ऊपर चढ़ते गया, 108 तक गया था थोड़ी देर के लिए, अचानक से नीचे आ गया एंड उसने क्लोजिंग जो दिया है 330 को, ये 102 में दिया है. एंड आज के दिन में इसने एक बार लो प्राइस भी टच किया था एंड वो प्राइस था 94 रुपीज का. तो जो प्राइस सस्टेन नहीं होता है ना, तो वो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आपके विक्स से वो प्राइस रिप्रेजेंट किया जाता है. आई शो यू द रियल एग्जांपल, तो थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा. आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए, विक मीन्स वीकनेस. जैसे देखिए, ये ग्रीन कैंडल है बराबर आपके यहाँ पे, तो मैं ना सर्टन लाइंस ड्रॉ करती हूँ, तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. देखिए, मैंने ना यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करके रखा है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस. थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को छोटा कर दूं. ये रेड लाइंस के बीच में ये जो ग्रीन कलर है, इसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है. ओके, सो मैंने इसके लो को मार्क करके रख दिया. नहीं रुको, मैं ऐसा कोई कैंडल पकड़ती हूँ जिसमें दोनों साइड पे विक हो. आई विल गो टू द अनदर एग्जांपल, तो आप लोगों को समझ में आएगा. एंड फर्स्ट आई विल शो यू अबाउट द ग्रीन कलर वाला एग्जांपल. अदरवाइज ऐसे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही है, छोटा सा ही विक है. गिव मी 2 मिनट्स, मैं और कोई ढूंढती हूँ. टाटा मोटर्स में क्या हुआ था? रेड कैंडल. अच्छा चलेगा, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल है, इसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे. और यहाँ पे ना टाटा मोटर्स का ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, हम लोग उससे अंडरस्टैंड करते हैं. देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बराबर. देन जहां से ये बॉडी स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें लिख देते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा. सो मैं माउस थोड़ा सा इशू कर रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे. आई एम सो सॉरी. पेन वाला टेक्स्ट ये कर देती हूँ. अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ चीज पिन करके रखी है. तो ये जो पॉइंट है, आप डंडी वाला स्ट्रक्चर भूल जाइए. जहां ग्रीन कलर स्टार्ट होता है ना, तो ये प्राइस, ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट था आपका ओपनिंग प्राइस. प्लीज कंफर्म ईच एंड एवरीवन कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है. यस मैम. Yes, ma'am. अच्छा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या तो ये जो था, ये ओपन प्राइस था, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ. देन यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब 816 राइट हैंड साइड पे आपको ये प्राइस दिख रहा होगा इन द ब्लैक कलर. दैट दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग प्राइस. सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो था आपका क्लोजिंग प्राइस था.
बराबर। बट आज के दिन में मतलब उस दिन ये प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आया था। देखिए आपका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था, बराबर। ये जो ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा था, ग्रीन कलर कलर जहां पे एंड हो रहा था वो क्लोजिंग प्राइस था। बट ये डंडी वाला स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट क्या करवा रहा है? मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। ये जो 785 गैप है कर ना, रहे ये हैं। डंडी वाला जो गैप है यहाँ पे ग्रीन कलर वाले कैंडल का, तो 793 में ये स्टॉक उस दिन ओपन हुआ था, बट इसने लो कहाँ तक लगाया था? 785 तक लगाया 785.50। था, बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया? देन अभी हम लोग अपवर्ड में, आई एम इंटेंशनली यूजिंग रेड कलर क्योंकि वो सबको दिखाई देगा मीटिंग में कितना भी नेटवर्क का इशू हो। देन 816 ये क्या था? आपका क्लोजिंग प्राइस था, बट उस दिन ये वाले स्टॉक ने हाई भी लगाया था। एंड कहाँ तक लगाया था? 819। 819.15 पैसा, करेक्ट। सो मैंने यहाँ पे 4 लाइंस आपके सामने ड्रॉ की है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 793 में ये ओपन हुआ था, क्लोज मतलब 330 को इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था? 816 था। 16। बट आज के दिन में एक बार तो वो प्राइस और ऊपर गया था। एंड कहाँ तक ऊपर गया था? 819.15 पैसा, वहां तक ये ऊपर चला गया था। ये ऊपर तो गया, बट ऊपर जाके ये प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, इसके लिए ये नीचे आ गया। एंड नीचे आके क्लोजिंग कहाँ पे दिया उसने? 816.50 में दे दिया। समझा? ओपन हुआ था आज के दिन में 793.20, बट थोड़ी देर के लिए नीचे भी जाके आ गया। तो पूरा दिन जो प्राइस का मूव था ये इसी रेंज में था। तो आज के दिन का मतलब इस दिन कौन सा डेट था? फ्राइडे था। तो फ्राइडे में कितना मूवमेंट हुआ था? 785 से लेके 819.15 पैसा तक इसका टाटा मोटर्स के स्टॉक का मूवमेंट हुआ था। समझा या नहीं? या शुड हैव टू एक्सप्लेन वंस अगेन? समझ आ गया मेरे को। समझ में आ गया हर किसी को? जी मैम। एवरी फैकल्टी? यस। जी मैम। सो ये कंसेप्ट आप लोगों को याद रखना है। नाउ जस्ट थिंक एंड टेल मी। मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ये दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो पार्ट है ना ये सस्टेन नहीं कर पाया। एंड आप लोगों को विक को याद क्या रखना है? कि दैट इज अ वीकनेस, करेक्ट। सो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखोगे कि जहां पे भी विक आता है तो विक आपको क्या बताता है? कि प्राइस सस्टेन नहीं हुआ था, एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग यू द वीकनेस। सो योर विक, जिसका स्पेलिंग आता है WICK, ये रिप्रेजेंट प्राइस की वीकनेस को करता है। तो जहां पे भी लंबा विक आपको दिखाई दे गया, मतलब बॉडी छोटा सा है बट बहुत ज्यादा लंबा विक है, तो वो आपको रिप्रेजेंट क्या करवाएगा? वीकनेस करवाएगा। क्लियर? एंड बॉडी वाला स्ट्रक्चर आपको क्या रिप्रेजेंट करवाएगा? अगर मैं किसी भी कहीं पे भी किसी भी स्ट्रक्चर में बॉडी का ये देख रही हो, सो बॉडी इज रिप्रेजेंटिंग यू द स्ट्रॉन्गनेस। प्लीज इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो आपके साइड में, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ this concept also. Body is representing you the strongness and wick is representing you the weakness. Clear? ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? चलो अभी now I'll go to the different examples क्योंकि वहां पे मुझे दिखाना बहुत इजी पड़ जाएगा। देखो अभी दिस इज द चार्ट ऑफ द HDFC बैंक। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद दिस कैंडल, जिससे मैं थोड़ा सा ब्रश से हाईलाइट कर देती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। अभी ये स्ट्रक्चर को देख के आप लोग मुझे बताओ, इसमें बॉडी ज्यादा है या विक ज्यादा है? वीक ज्यादा है। विक ज्यादा है। तो इंटरप्रिटेशन आपको क्या लेना है उस दिन के लिए? कि टुडे दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। मतलब आज के दिन में ये ऊपर तो जा रहा है
बट ये ऊपर ऐसे जा रहा है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, जैसे हम लोग किसी पहाड़ के ऊपर पहली बार जाते हैं। सपोज हम लोगों को पता ही नहीं है ट्रेकिंग कैसे करना है, ना तो अपने पास कोई इक्विपमेंट है, और हम लोग पहाड़ के ऊपर बस ऐसे चढ़ रहे हैं, एंड उस दिन हमारा स्ट्रगल चल रहा है। तो कैसा हो रहा है, हम लोग ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं बट फिसल रहे हैं, ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं पर फिसल रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ कैंडल जहाँ पे बॉडी बहुत छोटा है एंड विक बहुत बड़ा है, ये रिप्रेजेंट आप लोगों को यही करेगा कि उस दिन इसमें वीकनेस था, उस दिन प्राइजेस बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ये ग्रीन कलर आपको दिखाता है कि ऊपर तो जा रहा था, बट आपको ये जो विक वाला स्ट्रक्चर है ये क्या बताता है कि आज के दिन में तो बहुत ज्यादा वीकनेस था। क्लियर हो गया इंटरप्रिटेशन? हम लोग Yes, इस ma'am. कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं अभी। मैडम फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ चलेगा। देखिए आप लोग सिर्फ इसी कैंडल के ऊपर फोकस कीजिए जहां पे मैं अभी कर्सर मूव कर रही हूँ, बराबर? आपको और कोई कैंडल नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पे अगर आप लोग फोकस करोगे। सबसे पहला चीज आपको क्या देखना है, वेदर इट इज हैविंग एनी बॉडी। बॉडी क्या होता है, ऐसा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला कैंडल मुझे क्या दिखा रहा है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर तो इतना सा है, बट जो विक है मतलब जो डंडी है दैट इज टू लॉन्ग। एंड मैंने क्या आप लोगों को समझाया था, बॉडी इज रिप्रेजेंटिंग यू द स्ट्रॉन्गनेस इन द प्राइजेस, वेयर एज द विक इज रिप्रेजेंटिंग यू द वीकनेस इन द प्राइजेस। तो इस दिन का कैंडल ग्रीन तो बना है, बट क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि HDFC बैंक उस दिन इतना स्ट्रॉन्ग था ऑन द 2nd December 2024? सो द आंसर इज नो। उस दिन बेचारे प्राइजेस ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे बट सस्टेन नहीं हो रहे थे, नीचे आ रहे थे। इसीलिए ये जो कैंडल है ये ऐसे बना है, जहां पे भी डंडी ज्यादा है इट इज नॉट शोइंग यू द स्ट्रॉन्ग प्राइस मूव। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम हैव यू अंडरस्टूड? आई हैव नॉट सीन योर नेम बट हैव यू यस अंडरस्टूड? मैम, यस आई क्लियर। अभी देखो, अभी यहाँ पे एक रेड कैंडल दिख रहा है, मैं इसे भी मार्क करने का ट्राई करती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक रेड कैंडल को मार्क किया। अभी उस कैंडल को देखो एंड मुझे बताओ कि क्या इसमें आप लोगों को विक दिख रहा है ज्यादा? रेड बहुत का कम है इंटरप्रिटेशन मैंने क्या बोला था, नीचे, बराबर? नीचे। डेंजर साइन मींस प्राइजेस उस दिन तो नीचे जा रहे थे, बट बॉडी बड़ा है एंड वीक क्या है, विक छोटा। छोटा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, जस्ट टेल मी। इसके जो रेड एरिया है इसके नीचे ज्यादा नहीं टिकेगा, ये इसी रेंज में रहेगा जहाँ मेन बॉडी है इसकी। नहीं, मतलब थोड़ा लो में अलग भी देख लोएस्ट में, सकती है सर। लो में भी लोएस्ट नहीं जाएगा मैम। जैसे 1700 पे है और 1700 पे ये थोड़ी देर के लिए गया, यहाँ नहीं जाएगा, इसके ऊपर ज्यादा होल्डिंग है इसकी 1717 पे। सर आपका इंटरप्रिटेशन ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो मैंने आपको क्या फॉल स्ट्रॉन्ग है, सॉरी या फॉल स्ट्रॉन्ग है इसका। मैम मैम हाँ 780 पे खुला था ये और क्लोज हुआ है 770। 780 का 1780 के आसपास ओपन हुआ था एंड नीचे गिरता ही गया। बट आप लोग ना सिर्फ एक चीज याद रखो, बॉडी बड़ा है, बराबर? बॉडी मैंने Yes, क्या ma'am. बोला था, स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। अभी स्ट्रॉन्गनेस में कलर कौन सा है आपका? रेड। रेड। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये डिनोट करता है, अप जाने वाला या नीचे जाने Bearish वाला? है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। बेरिश है, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपको कलर देखना है, कलर से आपको क्या पता चलेगा कि आज ये ऊपर गया था या नीचे गया था, बट नीचे। आपको उसके इमोशंस भी समझने हैं। देखो जैसे ये वाला जो कैंडल था, मैं जहां पे अभी कर्सर मूव कर रही हूँ, इसके इमोशंस क्या थे, ऊपर जाने के थे, बट क्या ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस थे? नहीं थे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इसके इमोशंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे? बॉडी इतना सा ही तो था। यहाँ पे देखो, इट इज टू स्ट्रॉन्ग, बॉडी बहुत बड़ा बना है। सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कैंडल्स इज हेल्पिंग यू अ लॉट। जहां पे भी ऐसा बड़ा वाला बॉडी बन जाता है ना, सो इट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग यू कि नेक्स्ट डे
क्या हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे एक बड़ा वाला बॉडी दिख गया, उसके नेक्स्ट डे क्या कलर दिख रहा है आपको? नेक्स्ट डे रेड ही है नीचे। हाँ, तो आपका प्रिडिक्शन, जैसे मैंने फर्स्ट सेशन में ही बोला था कि स्टॉक मार्केट इज रिस्की, इनफैक्ट गॉड कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट द स्टॉक मार्केट कि कल को क्या होगा, बट आवर प्रिडिक्शंस कैन बिकम द एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ आवर प्रॉपर स्टडीज। जैसे मैंने बोला कि ऐसा बड़ा वाला बॉडी वाला कोई भी कैंडल हो, उसका कलर देखना है, यहाँ पे रेड था, तो एक थोड़ा सा आइडिया आ गया कि अरे आज का दिन इतना बेरिश था, तो नेक्स्ट डे प्रोबेबिलिटी ज्यादा किस चीज की है कि ये बेरिश हो सकता है। क्लियर? थोड़ा सा समझ में आ गया? अभी हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे, ये ऐसे बड़े वाले कैंडल के एंड विक वाले कैंडल के। अभी किसको दिखाऊं मैं? चलेगा, Okay. निफ्टी ले लेते हैं हम लोग। यस, आप कोई नाम सजेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए। मैम एक क्वेश्चन था यहाँ पे, पूछो। सॉरी, हाँ प्लीज 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 गो अहेड। ज्वाइन किया मैंने। ये जो रेड है दोनों कंसेक्यूटिवली, पहला ग्रीन लाइन के ऊपर नीचे, कैन यू एक्सप्लेन दैट प्लीज? दोनों रेडी है, फिर एक ग्रीन लाइन के ऊपर क्यों है, एक नीचे क्यों? पिछले दिन से डाउन ओपनिंग हुई है। अच्छा, आप मुझे इस कैंडल के बारे में पूछ रहे हैं, इस कैंडल के बारे में पूछ रहे हैं, एंड इसके पीछे का पूछ रहे हैं ना, कि इसके आगे का पूछ रहे हैं? नहीं, दोनों रेड है, लेकिन एक रेड ऊपर है और एक नीचे। ऐसा नहीं होता कि ऊपर है तो ग्रीन है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पिछले दिन का क्लोजिंग यहाँ पे ना, अगले दिन का ओपनिंग होगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम मैंने चेक ये किया है। यहाँ पे ना आप कैंडल्स देखोगे ना, ये कहीं पे भी बन जाते हैं, बट ये डेली टाइम फ्रेम जब भी आप सिलेक्ट करोगे ना, एक दिन का प्राइस मूव दिखाएगा। जैसे आप लोग अगर नीचे देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका डेट दिख रहा है। ये 12 तारीख को क्या हुआ था कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी, पूरे दिन गिर गई, एंड बेचारी यहाँ पे आके यहाँ तक इसने लो लगा दिया था। अभी 13 तारीख का सीन पूरा अलग ही होगा ना, तो डाउन ये में जो गिर नेक्स्ट गया। वाला कैंडल है वो आपको पूरे 13 तारीख में प्राइस कितना मूव हुआ था ये आपको दिखाएगा। ये एक्चुअली ना, मैम अगर मैं लाइव मार्केट दिखाऊं ना आपको, वन सेक, आई जस्ट शो यू द लाइव मार्केट, बिकॉज अभी भी बहुत सारी चीजें चल रही है। सो आई जस्ट शो यू कि जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग सिर्फ देखिए, आई हैव चेंज द टाइम फ्रेम टू द 5 मिनट्स। ओके, आपके सामने प्राइस चेंज हो रही है। तो लाइव मार्केट ना ऐसा साइलेंट नहीं होता है। जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू दैट आई हैव जस्ट गिवन यू द एग्जांपल। अभी आप लोग देखिए, आपके सामने ये कैंडल बन रहा है। टेक अ फील ऑफ दिस। दिस इज द प्राइस मूवमेंट ऑफ द सिल्वर इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। उसका हम लोग चार्ट देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे तो वो कैसा था, अभी ये कैसा है। ओके, जस्ट स्पेंड 2 मोर मिनट्स। देखिए वो कैंडल बन गया। अभी नेक्स्ट वाला कैंडल हम लोग सिर्फ गेस लगा सकते हैं अभी कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कैंडल्स। जैसे मैंने बोला था, ग्रीन कैंडल है, बॉडी देखिए इसका क्या था, ग्रीन बिग था, साइज है। बिग साइज का था। तो ये इमोशंस आपको क्या बताता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एंड Yes. इसके बाद देखिए, ये लाइव डेटा चल रहा है, थोड़ा सा तो इसके ऊपर जा गया है ना ये। क्लियर? Yes, ma'am. अभी देखिए, ये कैंडल ग्रीन बन रही थी हम लोग जब भी बात कर रहे थे, ये इन बिटवीन रेड भी टर्न हो रही है। अभी ये क्लोज कब होगी? आफ्टर 5 मिनट्स। तब हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैंडल बनी कैसे है। सो स्टॉक मार्केट इज रियली डायनामिक थिंग। हाँ, बट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप लोग बहुत सारी चीजें गेस कर सकते हो। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट 100%. प्लीज रिमेंबर दैट. Though I am the SEBI Yes, ma'am. registered, I am telling you that no one can predict with the 100% accuracy. And even as per the SEBI's norms also, we have to give that disclosure कि आप लोग predict कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब probability बता सकते हो, but 100% ऐसे ही होगा, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो। क्लियर? सो देखिए, ग्रीन बन रहा था, अभी रेड, क्योंकि प्राइजेस हिल रहे हैं। अभी आपके सामने ये हिल रहे हैं प्राइजेस ऑफ द सिल्वर।
मैम क्या हम इसमें जैसे जो हमारे पास कैंडल है ना ग्रीन वाला जो एक बहुत मतलब लार्ज कैंडल दिखा रहा है हमें एक, तो इसको हाँ, हम इस तरह जितना से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो अपना काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस स्टॉक में उस दिन। ये इसीलिए मैंने तो सिंपल में और फर्दर समझाया कि आप सेकंड डे बॉडी के को लिए हम देखिए। सेकंड डे के लिए हम इसको देखकर जो है अपना परचेजिंग इंटेंशन बना सकते हैं क्या? हाँ, बट बना सकते हैं, बट ये एक ही पैरामीटर नहीं है, प्लीज रिमेम्बर दैट। टेक्निकल एनालिसिस में ना बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो वो देख के मतलब एटलीस्ट सिर्फ एक यही नहीं है। हाँ, दिस इज द वन ऑफ द कंपोनेंट। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार तुम एमबीए कर लो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, बट क्या सारे एमबीए वाले लैक्स में कमाते हैं? नहीं। उसके लिए इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, खुद से भी ब्रिलियंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो वैसे ही है। दिस इज द वन ऑफ द कंपोनेंट। आप लोग जितना जी प्रैक्टिस करोगे ना आपके टेक्निकल एनालिसिस का या तो फिर फंडामेंटल एनालिसिस का, थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू। मैम एक चीज और है कि जैसे बुलिश और बियरिश ट्रेंड होता है 2 या 3 महीने का, तो उसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कई बार स्टॉक जो होता है बहुत बुलिश होता है, हम्म और कई बार जैसे हमारे पास ऐप्स है जैसे मनी कंट्रोल पे भी देखते हैं हम कि आप उस सिग्नल कर देता है कि आपका स्टॉक जो है बियरिश चला है अभी, चलेगा। तो मैं उसको आप उसको भी देख सकते हैं ना स्टॉक को आराम परचेज से देख करने के लिए। सकते हैं, मैं अभी आपको बता देती हूँ वो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तब तक आप किसी भी स्टॉक का नाम सोच के रखिए, एंड मैं उसको आपको यहाँ पे चार्टिंग करके दिखा देती हूँ। ओके ओके। जो बिगिनर्स को नहीं समझ में आएगा, बट प्लीज एवरीवन गिव मी 2-3 मिनट्स, आई जस्ट एक्सप्लेन हिज कंसेप्ट। सो आई होप जो भी बिगिनर्स हैं उनको पता चल गया होगा कि कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको प्राइस का डेटा दिखेगा ना, यू विल बिकम कंफ्यूज। बट अभी आपको ये पता चल गया कि अरे ग्रीन है, यहाँ पे प्राइस स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया ये 5 मिनट का कैंडल, एंड इसने टॉप तो यहाँ तक लगाया था। सो द स्टॉक मार्केट में ये प्राइस फ्लक्चुएशन हमेशा चलता रहता है, बट इसको प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसके लिए ये कैंडलस्टिक हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड टेक्निकल एनालिसिस इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स। सो हम लोग सिल्वर के ऊपर थोड़ी देर के बाद आएंगे। आप लोग ये प्राइस सिर्फ याद रखो, दैट वाज 31.770 समथिंग। ओके, एक राउंड फिगर याद रखो। यस सर, आप मुझे नाम बताइए या कोई भी किसी भी स्टॉक का नाम बताइए, क्योंकि आपके पास क्वेरी था ये बुलिश एंड बेरिश का। Hello, yes, ma'am. Aditi here. yeah, hi Aditya. Just want to ask that the one candle is considered for the whole day. No, see, it depends upon the time frame, because I was showing you the 5 minutes ka candle, that point of time. Here you have to, change the time frame. Here there is a time frame. Even you can see, if you are having the paid version, you can see the 1 second candle also, but that is confusing. So better to go for the, as a beginners, go for the 5 minutes candle or the 15 minutes candle. See Ma'am, this. it This, depends upon the time and then it forms. yeah, and depends upon your view also. Suppose you wanted to do the intraday, then your time frame will be the different. If you wanted to go for the swing trading, then your time frame will be the different. If you are the long term investor, then your time frame is a different. For example, I am completely into the options. Okay, so many of the time, even I am monitoring the 1 minute ka candlestick also. Okay. Okay. Thank if you. I have understood correctly, इसका मतलब है हर एक कैंडल पिछले कैंडल का डाउन और टॉप पे डिपेंड होता है। और नहीं, ऐसे नहीं हम बोल सकते। दिस फॉल होता है तो दैट विल बी ग्रीन, uh, टॉप होगा तो रेड 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 देखो, हाँ, डाउन होगा तो रेड, अगर ऊपर जाता है तो ग्रीन। एंड अगेन नेक्स्ट 5 मिनट्स का स्लॉट जो होगा, सो ये 44 मिनट्स 59 सेकंड पे जो होगा, वो छोड़ के आगे का जो काउंट होगा अगले 5 मिनट्स में, वो डिपेंड करेगा रेड होगा कि ग्रीन होगा। हाँ, मतलब यस करेक्ट, मतलब जहां पे प्राइस स्टार्ट हो रहा है, देखो अगर 5 मिनट हो गया, अभी 6th मिनट में प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड इसके ऊपर 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 ही जाते रह गया,
So सो that will be दैट विल बी ग्रीन. correct. बट चलो 6th मिनट में ऐसे हो गया, प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो गया बट वो नीचे 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 आते गए. जैसे देखिए अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि प्राइस कैसे स्ट्रगल कर रहा है. अगर नीचे 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 आ गया तो वो रेड में ही उसका कलर आ जाएगा. Okay, thank you. Okay. Yeah, and so please tell me the name of one of the stock. Bullish and bearish wala concept that's pending. Varun V average, Sorry, BBL, BDL, VBL, BDL और VDL. मैडम, V. मैडम IRFC का ले लो नहीं को। आज IRFC 6% अप था. हाँ 6% ही था ना, नहीं 5% था, मैंने गलत याद रख लिया. अच्छा चलिए अभी बुलिश या बेरिश. मैम Bullish- लेटेंट व्यू करके भी है एक स्टॉक ना. हाँ बट अभी अगर ये खुला है तो मुझे बस ये ओके, करने ओके, दीजिए. मैं ओके. इनको कंसेप्ट समझा देती हूँ. देखो अभी हमारे पास 1 आवर है तो सिर्फ बेसिक मैं इनको बता देती हूँ कि बुलिश एंड बेरिश इनका वो सर का क्वेश्चन था कि मैम बुलिश है या बेरिश है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा. तो देखो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मतलब एटलीस्ट आप सोच रहे हो कि थोड़ा और मैं रुकूंगा ये वाले स्टॉक में, तो आपको क्या करना है पता है. यहाँ पे जाके वो जो 1 डे का टाइम फ्रेम था ना, आई एम जस्ट सिलेक्टिंग एज द 12 मंथ्स. ओके ये देखिए एंड ऑफ इट. सबसे पहले मुझे जो कैंडल देखनी है वो देखनी है 1 साल की. मतलब ये एक कैंडल कितना टाइम फ्रेम मुझे दिखा रही है, 1 साल का मुंह दिखा रही है. ये रिसेंट 2-4 साल पहले ही लिस्टेड कंपनी था तो अभी अपने पास 4 ही कैंडल्स है. तो वो सबसे पहले हम लोग ईयर देखेंगे, देन इसके बाद आके आप क्या करोगे, इसी टाइम फ्रेम को एटलीस्ट 1 मंथ पे लेके आ जाइए. बराबर. अभी देखिए अभी 1 मंथ में आपको क्या दिख रहा है. ये कुछ ऐसा ऊपर जाने वाला स्ट्रक्चर, देन एक जगह पे ये एक ही जगह पे प्राइसेस रुकी है. करेक्ट. यहाँ तक Stagnant क्लियर हो हो गया गया price. आपको. या इज एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? ओके सो एक क्वेश्चन टाइम पे मैम स्टैग्नेंट हो गया प्राइस. हाँ एक टाइम पे ये स्टैग्नेंट हो गया. बराबर. अभी इसको ना एडवांस जो हम लोग यहाँ पे कवर अप नहीं करने वाले, बट आई जस्ट मेक सम सॉर्ट ऑफ द ड्राइंग. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो एंड देन क्रॉस वेरीफाई, बिकॉज रियल मार्केट में बाद में आप लोगों को ये डेटा दिखेगा. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बना रही हूँ, सिर्फ कुछ नहीं कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, because I don't like personally the complicated things. So ओके. okay. 200 पे. अच्छा मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ना सिर्फ 2 ऐसे बॉक्सेस बना दिए. यू आर अ बिगिनर्स. बराबर. ओके. अभी ये बॉक्स की तरफ देख के थोड़ा सा तो ये डायग्राम कुछ तो बताने लायक हो गया. क्या बताने लायक हो गया? जैसे मुझे एक चीज पता चल गई कि भाई 117 एक ऐसा पॉइंट है, बहुत महीने से ये प्राइसेस 117 के ऊपर ही है. देखिए मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ, ये प्राइस है 117. बहुत महीने से ये ऊपर ही है. ओके. कितना ऊपर गई थी 227 तक. बट क्या ये इससे निकल पाई है? नहीं. तो अभी ये जो प्राइस है ना वो एक ही रेंज में फंसी है. तो वी कैन से दैट 120 से लेके 230 तक ये जो 110 पॉइंट का रेंज है, तो ये फंसी हुई यहीं पे है. तो अगर आपको क्विकली पैसा बनाना है तो क्या अभी इसमें बन सकता है? सो आंसर इज नो, क्योंकि ये फंसी हुई है ना. आपका पैसा कब बनेगा पता है? ये भी वेरी सिंपल. इट्स वेरी एक्सट्रीमली ब्रेकआउट सिंपल. करेगा मैम. सॉरी. हाँ आइदर ये ब्रेकआउट करना चाहिए. देखो आप पैसा बना सकते हो, आइदर इसने इसके ऊपर जाना चाहिए, यानी छलांग लगानी चाहिए इस लेवल के ऊपर, या तो फिर इसके नीचे आना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली द स्टॉक इज नॉट इन द एफएनओ, तो आप लोग तो बेरिश वाला ट्रेड ले ही नहीं सकते हो. बट आइदर इसको ये लेवल, ये जो मंजिल हम लोगों ने बनाई है, इसके ऊपर जाएगा तो कुछ तो इसमें हो पाएगा, या
इसके नीचे जाएगा तो उसमें कुछ तो हो जाएगा। ये जो है ना, ये टाइम पास वाला जोन है, ये बस ऐसे ही टाइम पास करेगा, खुद का भी और आपका भी। तो बेटर है इसको थोड़ी दिन तक अवॉइड करो। सिंपल था, कुछ समझ में आ गया कि ये लेवल हम लोगों ने कैसे निकाला था। ये मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट 2 सेकंड्स में ये सब ड्रॉ किया। ये उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आज पहला दिन है ना, तो बस। बट एक कंसेप्ट समझ लो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, आप लोग सिर्फ इस ग्रीन कैंडल को देखो। ये ग्रीन कैंडल ने क्या आपको इंडिकेशन दिया था? बॉडी इतना बड़ा बना है एंड विक सिर्फ इतना सा। इसने क्या बताया था आपको कि इमोशंस तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, प्राइस मोमेंट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। ये बेचारा तब से देखो वो कैंडल के नीचे भी नहीं आया है। अगर ये आप लोग इस कैंडल का भी लो देखोगे ना, ये कब हुआ था? लास्ट ईयर दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। इस प्राइस के नीचे भी नहीं आया है ये अभी तक। क्यों? क्योंकि ये जो मूव था ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। थोड़ा सा समझा? बिगिनर्स प्लीज रिप्लाई, जी मैम, जी जी। बिकॉज मैं कभी कभी ना ऐसा बहुत एडवांस लेवल पे चले जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहते। ओके, सो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया कि आपको बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, या तो फिर टाइम पास वाला जोन जिसे हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कोई और एक नाम लोग बोल रहे थे, 2-3 नाम। रिलैक्सो। स्पेल, अच्छा, रिलैक्सो फुटवेयर। हाँ हाँ, ये देखिए सो पूरा ये मंथली टाइम फ्रेम है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। बट हाँ, अभी यहाँ पे ना क्रूशियल जोन है, ये देखिए इसका। लेट मी ड्रॉ दिस। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो ना ये थोड़ा सपोर्ट जोन के यहाँ पे है, आसपास है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हो एंड इफ यू आर एक्टिवली ट्रेडिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, ये एक्सप्लेनेशन बिगिनर्स को नहीं समझ में आएगा। आप सिर्फ ये देखना कि इसने ना 450 का लेवल ब्रीच नहीं करना चाहिए, एंड यहाँ से अगर ये थोड़ा रिवर्सल के साइन दे देता है ना, तो ही आप इसमें एंट्री करो। ओके, एंड कंफर्म रिवर्सल आपको किस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा दिख जाएगा। सी देयर इज नो कंफर्म, बट फिर भी लिटिल बिट कंफर्मेशन आपको 835 के ऊपर ही मिलेगा इसमें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड जस्ट डू क्रॉस वेरीफाई। इन फ्यूचर कभी भी 835 को ये क्रॉस करेंगे ना, तो इनको नीचे आना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टू दिस प्राइजेस। क्लियर? थोड़ा सा समझा कि ये बेरिश ट्रेंड था, ये ऊपर चला गया, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया। सो अर्लियर इट वाज बुलिश, फिर ये हो गया बेरिश। एक दो और नाम। ज्योति स्ट्रक्चर। सॉरी, ज्योति स्ट्रक्चर। मुझे इसका स्पेलिंग बताइए। हाँ, आ रहा है, जी। आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये देखिए, दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। अभी ना इसमें कैसा है कि इट हैज नॉट ब्रीच द प्रीवियस लेवल, मतलब नीचे तो नहीं गया है ना, तो ऊपर भी गया है। अभी इसमें भी ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा स्ट्रगल वाला जोन ही है इसमें अभी करंटली इन अ मंथली टाइम फ्रेम। लेट मी चेक आउट इन द डेली टाइम फ्रेम कि डेली में क्या हो रहा है, क्योंकि है अगर डेली में इट विल क्रॉस दिस 35.64 वाला लेवल, देन इट कैन गिव यू द मूव, ये वाला लेवल। आई जस्ट पुट द लाइन ओवर देयर। इसको Yes. इसमें ब्रेच करना चाहिए। सो मैक्सिमम आप लोग इसको ये 41 रुपीज तक देख सकते हो। अगर इसके ऊपर निकल गया तो तब तक देर इज नो कंफर्मेशन एट द बाइंग साइड एट ऑल। अगर आपने यहाँ पे बॉटम पे पकड़ा है कहीं पे, देन यू कैन होल्ड इट। बट अगर I आप have purchased it for 13 rupees. अच्छा, यू हैव इन्वेस्टेड फॉर 13 Yes. रुपीज, Yes. तो अच्छा है ना, तो पकड़ के रखिए। जस्ट पुट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दैट्स इट। और कोई है जो देखना है किसी को कुछ? लॉयड स्टील है मैम, एक डबल एल वाई ओ डी।
O, डी 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 कौन सा ये? लॉयड स्टील नहीं, ये वाला? ये तो ऑपरेटर वाला है पूरा, NBSC वाला। ये था या स्पेलिंग कुछ और था? बिकॉज ये नहीं मैम, लॉयड स्टील करके था एक में। कोई स्पेलिंग बताएगा इसका मुझे, क्योंकि ये कैश मार्केट का है ना। LLOYD LLOYD यही आ रहा है। D for dog। इसमें से एनर्जी, ये मेटल्स एंड एनर्जी, ये वाला। सर बताइए आपका कौन सा है इसमें से? ये है मेटल सेक्टर। मेटल्स। आज मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। देखिए यहाँ पे ना, अगर आपके पास पोजिशनल है यहाँ पे, तो ये तो एक जोन को छोड़ के ऊपर तो गया है। सो ये आपके लिए लक्ष्मण रेखा है अगर आप बहुत पहले से हो तो, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, अभी ये फिर से ऊपर का जर्नी है। तो एकदम ही आपको सेफ ये करना है, आप यहाँ तक का एसएल इसमें रख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ तक भी रुक सकते हो, क्योंकि अभी मेटल्स कंपैरेटिवली सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो इसने ब्रेकआउट तो आपको दिया है डेली टाइम फ्रेम में। क्लियर? सुजलान देखो ना, सुजलान। अच्छा, सुजलॉन ना एक्चुअली मैं बोलूँ जो पेनी स्टॉक कैटेगरी में आते हैं ना, उनके ऊपर ना टेक्निकल फंडामेंटल बहुत कम वर्क करता है, एंड उसके ऊपर ना ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। जैसे सुजलॉन अगर आपके पास है, यस यू कैन होल्ड इट, जिसका टारगेट 100 रुपीज बोला जा रहा है, कब आएगा मुझे भी नहीं पता, गॉड ओनली नोस। नेचुरल गैस नहीं, नेचुरल गैस ना कमोडिटीज में आता है, एंड प्लीज रिमेम्बर कि कमोडिटीज में भी आप ऐसा ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख के अगर ट्रेड ले लोगे ना, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। मतलब अभी ये स्ट्रॉन्ग है, बट कमोडिटीज में इफ यू आर प्लेइंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो वो थोड़ा सा रिस्की है। तो आपको वो स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट करके, मतलब विद द हेल्प ऑफ द FNO ये करना पड़ेगा। अभी डेली में तो आज के दिन ये बहुत ऊपर गया है। ये देखो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आज के दिन में ये गया है 4.93% अप, मतलब 13 रुपये अप। 1250 एक पॉइंट ये मूव करेगा तो इसका 1250 मिल जाता है। सो इट हैज मूव 13 पॉइंट्स। तो आप लोग कैलकुलेट करो, 13 into 1250 जो भी अमाउंट होता है, दैट इज द प्रॉफिट गिवन बाय द नेचुरल गैस टुडे. Natural gas is not the equity component, it's a part of your commodities market. And ये market जो commodities का market है, ये सुबह 9 o'clock को start होता है and रात को depends upon the time slot, कभी वो 11:30 को बंद होता है या तो फिर 11:55 को बंद होता है. That's why here it is written as the MCX. MCX stands for the Multi Commodities Exchange. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Any other questions? Any other queries? At least as a beginner, you all have understood कि green color क्या denote करता है, red color क्या denote करता है. See, in a 1 day, in a 1 hour, yes, it was difficult to explain each and everything, but technical analysis is very helpful if you wanted to become the trader or if you wanted to focus on the swing trading. If you are the long-term investor, then fundamental is very useful for you. But अगर 1 साल के पहले का टाइम ड्यूरेशन में आपको पैसा कमाना है, so then this is good for you. Which are the good stocks for the beginners for the long term? So the answer is that
currently just wait for the dip in the market if you wanted to invest in for the long term. At this higher level, if you are thinking for the investment, then this is not the correct decision. Yes, पहल मैम, आपका क्वेश्चन मैंने अभी देखा, आपने जो चैट सेक्शन में पोस्ट किया था. आई होप दैट योर क्वेरी हैज सॉल्व. और तनुश्री मैम, एक्चुअली ना मेरा स्टाफ नहीं, ये सारे कॉलेज का आईटी डिपार्टमेंट ये सारी चीजें कर रहा है, बट आई स्टिल डिस्कस विद देम एंड आई डू लेट यू नो ऑन द ग्रुप. यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? मैम वो जो हम बोल रहे थे उसकी स्पेल था LOYDS, हम थोड़ा गलत वो लिख रहे थे उसकी स्पेलिंग. सर चैट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए ना, मैं कॉपी करके फटाक से जाती हूँ. एजुकेशन हैज रिटर्न आपका क्वेश्चन बोलेंगे मिस्टर एजुकेशन, ये क्या है? आई एम बिगिनर, इट विल बी सुटेबल फॉर द डेली मार्केटिंग. मुझे समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो. आपका क्वेश्चन. मैम एक कल हेलो किसी ने मैम. क्वेश्चन हेलो पूछा था मैम. ना मैम, हाँ, किसी ने पूछा था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है शेयर की और बुक वैल्यू, क्या वो एक ही है? क्या आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, मैं आपको ये कल बता देती हूँ, क्योंकि ना आज हम लोग चार्ट प्राइसिंग के ऊपर है एंड सारा, क्योंकि कल के जो 2 दिन है, अभी नेक्स्ट हमारे 2 दिन है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट वाला ये है. एंड कल मैंने रेशियोज भी नहीं समझा पाई थी, क्योंकि ये बुक वैल्यू एंड प्राइस वैल्यू ये सारा रेशियोज का पार्ट आता है. करेक्ट? ओके तो मैं ओके मैम. कल आपको वो पूरा एंड विद द हेल्प ऑफ द लाइव डेटा मैं समझा देती हूँ. यस सर, आप बोलिए प्लीज. यस मैम. हेलो. यस, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे. हाँ, बोला था ना, मैं पहले तो हम बिगिनर्स है, तो हम हमारा के सुटेबल होगा वो जो डेली बाइंग एंड सेलिंग करता है, वो सुटेबल फॉर मी. देखिए, अगर आप बिगिनर हो एंड आप थोड़ा 6-7 मंथ्स प्रैक्टिस करोगे वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एंड थोड़ा सा अच्छे वे में सीख जाओगे ना, तो आप कर सकते हो. बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर the person who is having the knowledge can make the money even at this every second. क्लियर? तो आप थोड़ा सा आपको टाइम दे दीजिए, आप स्टडी कीजिए पहले, क्योंकि अभी आपको बेसिक्स पता नहीं है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ. अगर है तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, इसलिए पूछ रहा है. हाँ, तो हमारा तो नॉलेज जीरो है इसलिए. हाँ, तो आपका जो भी नॉलेज है ना, आप एक काम कीजिए, चाहे तो नोटबुक ले लीजिए या एक एक्सेल शीट बनाइए. इसमें ना लाइव मार्केट में थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए. मतलब आप ऐसा, अगर लाइव मार्केट चल रहा है अभी, तो देखिए कि ये वाला स्टॉक आपने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, एंड फिर आपका सक्सेस रेशियो देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप जो भी गेस कर रहे हो ये करेक्ट है या रॉन्ग है. अगर मैक्सिमम रॉन्ग आ रहा है ना, तो अगेन यू हैव टू इम्प्रूव योर स्टडीज. अगर हाँ आपके प्रोडिक्शंस एकदम बराबर जा रहे हैं, देन यू कैन स्टार्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स. मतलब कल ही उठ के आप मत कीजिए, बट थोड़ा सा मॉनिटर कीजिए. जैसे वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वो भी आप लोग देखिए. यस यस मैम. वो जो आप लक्ष्मण रेखा दिखाया ना, वो कितना दूर उठना पड़ेगा? वो आप तो बोला 5 मिनट्स का रेशियो है, वो दिखाया है. हाँ, आप देखो, वो जो मैंने आपको लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके दिखाया था ना, वो 5 मिनट के इसमें भी होता है ना, वैसे ही आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ कर सकते हो. बराबर? तो आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके. थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा. देखिए, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन लेते टाइम पे भी इतना टाइम दिया था ना, एंड उसी के ये रिटर्न्स है. तो वैसे ही है, यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा. विद इन द 1 डे कुछ नहीं होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली होगा. थैंक यू मैम. या वेलकम.
थैंक यू। Yeah, welcome. Acha, Pehel ma'am has asked one question. What is? Yeah, Praveen sir. Principal sir was wanted to speak something. Yeah. What does it mean when Adani is at 2457 in the NSE and 2455 in the BSE? Pehel ma'am, both are the different markets. NSE is a different market, your BSE is a different market. Please remember that for buying a particular thing, let's take a simple example. For buying any product, if you are visiting two different shops, there also you will be able to find the price difference. So the price difference is always there when it comes to the different market. Even if you will check out the ADR and GDR rates, there also you will be able to find out the difference because that depends upon the market. Clear, ma'am? I hope that your query has solved. Which is good. FNO or intraday. See, FNO is a segment that is called as the derivatives market. First, you have to understand the stock market, then you can start with the futures and options. And which is best? Each and everything is the best. It depends upon your knowledge. I'm into the FNO market and I am majoritarily into the intraday. Okay, so FNO is not a different, intraday is not a different. FNO is one segment of the market. So it depends upon your knowledge, what you wanted to do. Even in the FNO segment also, there are the lots of instruments. For example, you are having futures, you are having options. So it depends upon you where you are having the expertise. I'm having the expertise on the options. Okay. So like that, you have to select कि आपको फ्यूचर्स ही करना है उसमें या ऑप्शंस ही करना है. तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड देयर आर द लॉट्स ऑफ द थिंग्स. मतलब इक्विटी मार्केट ही नहीं है. जैसे आई हैव शोन समवन आस्क मी अबाउट द नेचुरल गैस, तो आपके पास कमोडिटीज मार्केट भी है, आपके पास फॉरेक्स मार्केट भी है. फॉरेक्स मार्केट इवन इज ओपन एट 24/7 विदाउट एनी हॉलीडे. यहाँ पे तो हम लोगों को सैटरडे संडे हॉलीडे तो है, नेशनल हॉलीडेज है. So it depends upon your studies and आप क्या करना चाहते हो. Okay. So any other question? Any other queries? Ma'am, as you mentioned about yeah, Dolly ma'am. As you mentioned about the commodity market and forex market, ना, तो उनमें भी अगर हमें कुछ बिजनेस करना है, like we are doing in the equity market, ना, तो सेम प्लेटफॉर्म्स ही हमें यूज करने होते हैं या उनके लिए कोई अदर प्लेटफॉर्म्स हैं? देखो MCX मार्केट आप मतलब कमोडिटीज आप उसी डीमैट अकाउंट से ऑपरेट कर सकते हो. बट अभी फॉरेक्स मार्केट के लिए क्या हो गया है ना, पहले हम लोग उसी से कर पाते थे. मतलब अपना जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर हम लोग फॉरेक्स के फ्यूचर्स ले पाते थे. बट अभी सेबी के नए रूल से तो वो भी बंद हो चुके हैं. तो यू हैव टू ओपन द इंटरनेशनल अकाउंट फॉर द फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रिप्टोज. क्रिप्टोज अलग है एंड फॉरेक्स मार्केट अलग है. फॉरेक्स मार्केट मतलब जहाँ पे आपके जो करेंसीज होते हैं जैसे US डॉलर हो गया, यूरो हो गया, जो वहां पे जो ट्रेडिंग होता है उससे हम लोग फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं. जैसे अगर आप लोग मेरा भी नाम सर्च करोगे ऑन द यूट्यूब, आई एम हैविंग द लेक्चर्स फॉर द इंटरनेशनल फाइनेंस. वहां पे ना मैंने फॉरेक्स का बेसिक कैलकुलेशन जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होता है ना, उसका पूरा प्लेलिस्ट है वहां पे. But that is not related with the trading. I'm going to come up with the one of the YouTube channel for the trading also, but I'm not getting time. So just because of that, I'm not able to record anything. Yes. Thank you, Ashwini Kumar. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड भी है मैम आपके कोई यूट्यूब नहीं पे सर, यूट्यूब पे वीडियोस? नहीं है. बट मतलब मेरा बहुत सारे कॉलेजेस के साथ MOU है ना, हम लोगों ने करके रखा है. तो ओके अभी हम लोग उनके साथ ये कोर्सेस लॉन्च करने वाले हैं. क्योंकि FDP हम लोगों ने जस्ट फॉर गिविंग द मतलब बेसिक्स आइडिया समझाने के लिए. बट जो 30 आवर्स के कोर्सेस है या तो फिर 15 आवर्स के जो कोर्सेस है
वो हम लोगों के आने वाले हैं, मतलब जून में भी हम लोगों ने किए थे बहुत सारे, मतलब इंट्राडे के एफटीपीस किए थे हम लोगों ने, देन स्विंग ट्रेडिंग के किए थे। तो मुझे कोर्स तो लॉन्च करना है एफएनओ सेगमेंट का, तो उसके लिए मैं एमबीए कॉलेज के साथ टाइप का देख रही हूँ अभी तक, बट ईच एंड एवरीथिंग इज इन प्रोसेस, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक तो मेरा खुद का काम चालू रहता है। सो उसके बाद बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम बार मैं कॉलेजेस के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती हूँ, करने के लिए टाइम मिल जाता है, वैसा चीज है। अगर आप के भी मतलब जितने भी फैकल्टीज यहाँ पे प्रेजेंट है, इफ योर colleges wanted to do the you wanted to sign the MOU with us, please do let us know. तो मैं आपको सारा ड्राफ्ट वगैरह सब भेज दूंगी। थैंक यू मयुरेश सर, थँक यू विठ्ठल सर. आय होप दॅट की आज लँग्वेजचा काही जास्त प्रॉब्लेम आला नाही विठ्ठल सर, आणि काही प्रॉब्लेम नाही झाला. येस. Okay, thank you so much. So tomorrow we are going to meet with the risk management thing, and we are going to understand little bit of the fundamentals, and एक और concept मेरा रह गया था technical का, that we will cover up tomorrow. Yeah, sorry. Yes, you can start. Thank you, ma'am, to our first for research and informative on technique. Our gratitude to the participants for their enthusiastic involvement. We shall this session. Thank you, everyone. Today's feedback link is in our chat box and our WhatsApp group. Feedback. Thank you all. Thank you so much. We will meet tomorrow, everyone. Thank you. Take care. Bye bye.